Dear students, welcome to Gyan Mimamsa. This is our third video in the Science and Technology Current Affairs series. The videos are mostly helpful for Prelims 2023. In this video, we will discuss about green hydrogen and R value. And we have already uploaded 2 videos of science and technology and also 3 videos of environment are there on the channel. You can subscribe the channel for updates and also you can like and share. And you can comment your queries in the comment box below. Also, you can comment the answer of the question given in the video in the comment box below. Further, you can email us at info@gyanmimamsa.com. The email ID will be given in the description box. And for the PDF of all these videos, you can join our Telegram channel. We will be uploading all these PDFs soon. So let's start today's video. First is green hydrogen. Now, what is green hydrogen? As you all know, hydrogen is a good fuel. It is available in the nature in the H2 in a molecular form. Hydrogen is the atom, and it is a very good fuel with high calorific value and very less, global warming potential. It won't produce any carbon dioxide. Now, green hydrogen. Green hydrogen is a type of hydrogen that is produced through the electrolysis of water using renewable energy sources. So the process here is called as electrolysis, and it is just produced from the water whose molecular formula is H2O. So it is separated using electrolysis, and for electrolysis, the energy that is used is renewable energy. Hence, it is called as green hydrogen because production of hydrogen, it does not affect the environment much. It does not have any CO2 emission, right? So the electrolyte process splits the water into hydrogen and oxygen, and the hydrogen produced can be used as a clean and renewable fuel. So as I told you, H2O, by electrolysis, it can be converted into hydrogens and oxygen molecule, and this can be used as a clean energy fuel. Current status of green hydrogen, according to IRENA, International Renewable Energy Association, इसने ये रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक. सो ये क्वेश्चन भी कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं रिगार्डिंग रिपोर्ट. सो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय IRENA, that is International Renewable Energy Association. At present, according to IRENA, less than 1% of hydrogen produced is green. So total जितना hydrogen produced and consumed होता है उसमें से only 1% currently is green hydrogen that we need to increase. In Indian context, India consumes around 6 million tons of hydrogen every year. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और इसमें से बहुत ही कम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में मिलता है. Remaining types of hydrogen we will read about in the next slide. So this could और ये जो 6 million ton है currently, it can go up to 28 million tons by 2050. और जो बाकी जो ग्रे हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, उनके प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होता है. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हमें H2 प्रोड्यूस करना है अप टू 28 मिलियन टन्स बाय 2050, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत बढ़ सकता है. दैट इज व्हाई वी नीड टू मूव टू द ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, इंडिया के पास फेवरेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि सनलाइट एंड विंड है. तो यूजिंग सोलर पावर एंड यूजिंग विंड पावर, जैसा कि मैंने बताया, दिस हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. सो इंडिया कैन बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030. ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ जो है इंडिया का थोड़ा सस्ता है एज कम्पेयर टू other countries. So that is why, according to Global Hydrogen Council, India can become a net exporter of green hydrogen by 2030. So it is a good news for India. But there are some challenges in making the green hydrogen. First is storage and transportation. As I told you, hydrogen is highly inflammable gas. So it takes up a lot of space and has a habit of making steel pipes and welds brittle and prone to failure. Brittle हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन उनसे रिएक्ट करती है. तो पाइप्स के थ्रू अगर मूव करेंगे तो ब्रिटल हो सकती है, कि ब्रिटल हो गई तो ब्रेक हो सकता है. एंड इफ देयर इज ब्रेक और लीकेज, तो हाइड्रोजन, एज आई टोल्ड यू, इज हाईली फ्लेमेबल, तो देयर मे बी डिजास्टर्स. Second is high cost of production of the green hydrogen. According to International Energy Agency IEA, the green hydrogen का production cost है that varies from $3 to $7.5 per kg. 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में अराउंड इंडियन टर्म्स में देखें तो 250 से करीब 500 रुपए का एक्सपेंडिचर आता है, बल्कि 600 करंट टर्म्स में.
when we compare it from other form of hydrogen like brown hydrogen or gray hydrogen जिसका कि expenditure comes from 80 to 250 rupees. ठीक है, जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इट इज वेरी हाईली हाई हैविंग वेरी हाई कॉस्ट. एंड द एफिशिएंसी ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी इज अराउंड 60% to 80%. मतलब कि जितने में 100 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए उसमें से सिर्फ 60 to 80 किलोग्राम हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो स्टोरेज का इश्यू है, ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है, हाई कॉस्ट का इश्यू है, लो एफिशिएंसी का इश्यू. दीज आर द चैलेंजेस in producing green hydrogen in India and the world. Now there are four types of hydrogen. Let's talk about them. Brown hydrogen, gray hydrogen, blue hydrogen and the green hydrogen. सबसे पहले brown hydrogen, these are in the decreasing order of intensity of emission. इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा emission brown hydrogen में होता है, सबसे कम emission green hydrogen में होता है. So brown hydrogen जो है that is produced through gasification of coal और lignite coal. अब कोल की गैसिफिकेशन से कोई भी चीज प्रोड्यूस होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा रहेगा. ठीक है. नाउ ग्रे हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या है, इट इज यूज थ्रू स्टीम मेथेन रिफॉर्मेशन, एसएमआर टेक्नोलॉजी. ठीक है, यूज होता है. तो इसमें क्या मेथेन को यूज करते हैं, नेचुरल गैस को, दैट इज मेथेन, उसको यूज करते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट वेरी कार्बन फ्रेंडली क्योंकि मेथेन इज CH4. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो कार्बन प्लस 2H2 निकलता है, तो जो CO2 निकलेगा it will be still be there. So gray hydrogen is less emitting than brown hydrogen, but still carbon emission is quite high. यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज ब्लू हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है सेम प्रोसीजर SMR से, स्टीम मेथेन रिफॉर्मेशन प्रोसेस से, यूजिंग मेथेन. बट जो CO2 एमिट होती है उसको वाटर के अंदर कैप्चर कर लिया जाता है थ्रू CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. और क्योंकि उसमें वाटर यूज होता है, दैट इज वाई ब्लू हाइड्रोजन. तो इसकी वजह से क्या, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है काफी होती है, उसमें से काफी हद तक इसमें उसको कैप्चर कर लिया जाता है. सो दैट इज वाई ब्लू हाइड्रोजन इज quite eco-friendly as compared to both of these. And green hydrogen, as I told you, in contrast could almost eliminate emissions. ठीक है, emissions almost negligible होता है क्योंकि energy जो use होती है that is renewable energy and the feed is used is hydrogen, water. तो water से H2 plus O2 बाहर निकलता है, no carbon dioxide emission. ठीक है. So that is why electrolysis of water की वजह से बनता है. So minimum elimination होता है यहाँ पे. सबसे ज्यादा एलिमिनेशन ब्राउन हाइड्रोजन में, फिर ग्रे में, ब्लू में एंड देन ग्रीन में. देयर मे बी अ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू देयर ग्लोबल हाउस वार्मिंग पोटेंशियल और अकॉर्डिंग टू द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको सबसे ज्यादा ब्राउन हाइड्रोजन, उससे कम ग्रे हाइड्रोजन, उससे कम ब्लू हाइड्रोजन एंड सबसे कम ग्रीन हाइड्रोजन, इस वे में आपको मार्क करना है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द आर वैल्यू. आर वैल्यू आपने बहुत बार सुना होगा ड्यूरिंग कोविड-19. ठीक है. होता क्या आर वैल्यू, आर वैल्यू स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ पीपल वन पर्सन कैन इन्फेक्ट. ठीक है. मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, उसको कोविड हो गया. ठीक है. वो कितने लोगों को आगे इन्फेक्ट करता है, YZ ऑन एन एवरेज. ठीक है. सो दैट इज द आर वैल्यू. आर फैक्टर को आर नॉट भी बोलते हैं. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायरस इज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वायरस का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कितना फास्ट है, that is R value. That means higher the R value, higher will be the spread of the virus. For example, measles जो है उसका R value is 15 among the unimmunized people. तो unimmunized अगर population है तो एक इंसान को जब मीजल होता है तो on an average he or she spreads it to 15 more people. That is इतना हाई होता है R value measles का. साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेनली इसका यूज क्यों करते हैं, टू प्रेडिक्ट हाउ क्विकली एनी वायरस spread in a given geographical area. कोविड-19 में ये बहुत यूजफुल रहा टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा फैल रहा है. वैल्यू ऑफ 1 मीन्स एवरी इन्फेक्टेड पर्सन विल लाइकली टू इन्फेक्ट अनदर पर्सन. एक आर वैल्यू का मतलब होता है एक इंसान एक दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करेगा. आइडियली क्या है, आर वैल्यू जितना कम हो सके उतना अच्छा है. अगर एक से नीचे होती है आर वैल्यू, इसका मतलब क्या है, द रिप्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस इज रिड्यूसिंग एंड it will stop, the disease spread will stop soon. ठीक है. Since सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, we cannot calculate it very accurately. ठीक है. इसकी accuracy rate low है तो बहुत reliable नहीं होता, but still it is being used क्योंकि empirical data based है और backward calculation करते हैं साइंटिस्ट using number of deaths, कितने हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने सैंपल्स हैं और टेस्ट पॉजिटिव आए हैं within a vicinity. So every geographical area का
इन चीजों के ऊपर बेस्ड R is calculated, so the data is not that accurate. ठीक है, but still it can be used to have some data and to contain the infection. Accuracy. अब इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा ये. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 फाइट अगेंस्ट कोविड-19, बट एक्सपर्ट सेज कि बहुत ज्यादा इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बिकॉज जो एस्टिमेट्स है वो इम्प्रिसाइज है. मीन्स देर इज नो कैलकुलेशन का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है. इट इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल मेथड. ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा. ठीक है, आर जब भी आर स्पाइक करता है कभी कभी, इवन द देर आर लो नंबर ऑफ केसेस, स्टिल आर कैन गेट स्पाइक्ड. ठीक है, तो ये इतना रिलायबल डेटा नहीं है. सिंस इट इज एन एवरेज फॉर अ पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का एवरेज होता है, तो लोकलाइज्ड एरिया में वेरी ज्यादा कर सकता है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए अगर आर वैल्यू इज 1 और 0.9 फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है वो केरला में 1.1 हो, गुजरात में 0.8 हो, पंजाब में 0.7 हो. इट कैन वेरी, और विद इन सेम स्टेट डिफरेंट लोकेलिटी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इट कैन वेरी. सो अगेन इट इज नॉट वेरी रिलायबल. अगर आप पूरे कंट्री के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो इट मे नॉट बी वेरी रिलायबल. सो वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम. Consider the following statement regarding R value seen in news during COVID-19 pandemic. R is the number of people that one infected person will pass on virus to on average. It is an accurate measure for spread of virus and can be used for controlling spread of infection. So which of the above statement is are correct? Please answer in the comment box below. Thank you very much.